Students, today we are going to start with the new chapter, sound. Okay, so now what is this sound? We listen to telephone bell, right? Phone ringing, radio, television, a mixer grinder, washing machine, bus, cars, motorcycles, scooters moving on the road. Then we also listen to violin, veena, sitar if it's played, right? So all this is what some sensation felt by our ears, which is called sound. So, it is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. Okay. Okay. So, it is sensation of hearing in our ears. It is a form of energy which makes us hear things. Okay. Now let's see an activity where we are using a tuning fork. Okay. It looks like this. So it is you'll see when you hold it from its stem. This is the stem. What is stem in the this fork is that it is a single metal piece with a handle, u shaped. This part is called stem. Okay, so the two arms in the u shaped section, this u shaped section is prongs, and it is used to produce sound of certain fixed frequencies. Okay, so what happens? You hold it by stem and strike it with a rubber pad or hammer. You observe that this prongs, this U-shaped part, okay, starts vibrating, and then sound is produced. There's one more example which we can look at. See, when you're talking, place your fingertips against the front of your throat. What do you feel when you make a noise or when you recite something? Your fingertips feel some vibration, right? So this vibration produces sound. Okay, vibration produces sound. Now for this sound to for this vibration to produce sound, we need a material body. So we say that a medium is needed for sound to travel. Sound can travel through solid, liquid and gas, but cannot travel through vacuum. So, this medium, what is this medium? Matter or the substance through which sound is transmitted. That is what we call medium. Okay, and that can be verified by performing few experiments as shown in the figure below. Like this one, it says that sound can travel through liquid. This is one example. Another example of this I can give you is take a balloon and a watch. Fill a balloon with water, hold it near your ear. Now keep the watch gently to the other side of the balloon. Okay, you will hear sound. So that proves that sound can travel through liquid. And the second figure shows it's an experiment using string, proving that sound travels through tight string. It's easy. Take two empty cans, take a long piece of string, connect the can together with it, hold one can on your ear, ask your friend to hold the other on his mouth. Now pull the string tight, okay, and ask your friend to speak into the other can. Listen through the can you're holding, and you will hear what your friend is talking. So the sound travels through the string, right? Now look at the next one. Now in this picture, see, it shows that sound can travel through air but cannot through vacuum. How is that happening? See, take an electric bulb, a glass jar, and a vacuum pump. Hang on this bell inside the glass jar as shown here. Okay, so okay, connect it to a vacuum pump. Switch on the bell. Will you hear the alarm clicking? Yes, you will. Now switch on the vacuum pump to take the air molecules out of the jar. Okay, you're evacuating it. Then what happens to the sound of the bell? The sound becomes feeble, and finally you'll not be able to hear the sound. That means it cannot pass through vacuum. It needs a medium to travel. It can pass through air or gas but cannot pass through vacuum. Okay, so now see, as I said, um, the medium needed by sound to propagate must be a material medium, right? Elastic or continuous.
like it can be solid, liquid, or gas. So when a person speaks, the air closer to his mouth is pushed in the direction of the sound. Okay, I'll repeat again. When a person speaks, the air close to his mouth, okay, जो मुंह के पास होता है एयर, वो किस तरह पुश होता है, वो साउंड के डायरेक्शन में पुश होता है. उसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स इस लेयर्स में होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी स्टेशनरी पोजीशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं. And the process continues until the molecules in the air nearest to the listener's ear starts vibrating. तो ये जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है कॉज वाइब्रेशन कहाँ पे, लिसनर्स के ईयर में, डायफ्रम में. ठीक है, वाइब्रेशन कॉज करता है. तो ये डायफ्रम क्या करता है, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन. ठीक है, ऐसे हमें सुनाई देता है चीजें, समझ गए. सो ये जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर में, उसके जो मोशन के वजह से जो, उसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं. वो क्या करता है, ट्रैवल करता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द लिसनर्स ईयर्स. ठीक है, वो ट्रैवल करता है. जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो ट्रैवल कर रहा है जो सोर्स, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वहां से लिसनर्स ईयर तक का, ना कि हवा. एयर इज नॉट ट्रैवलिंग, द एनर्जी इज गेटिंग ट्रैवल्ड. ओके, सो now let's see what this wave is. Sound propagates as a wave. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सोर्स ऑफ साउंड टू जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है वो ट्रैवल होता है, एयर ट्रैवल नहीं होता, राइट. सो ये जो मूवमेंट या डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है एक मीडियम के पार्ट से दूसरे मीडियम में, उसको वेव मोशन बोलते हैं. इसलिए हम कहते हैं साउंड प्रोपोगेट्स एज अ वेव. वेव क्या होता है, अब जैसे ये वाटर का जो रिपल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ठीक है, मतलब व्हेन यू थ्रो अ पेबल इन अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ये जैसे इस डायग्राम में दिखा ऐसे रिपल्स देखेंगे आउटवर्ड मूव होते हुए, एज अ वेव्स मूविंग आउटवर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, राइट. सो इट इज द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस क्या है, वाइब्रेटरी मोशन मॉलिक्यूल्स का, एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको बोलते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स का जो मोशन है, उसके रिपीटेड मोशन, जो पीरियोडिक मोशन जो है उसके मीन पोजीशन में, उसका जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं वेव. मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम, ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं. सो इस वेव मोशन क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर. एक पार्ट ऑफ मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट है उसका मूव होना टू अनदर पार्ट, उसको हम कहते हैं वेव मोशन. ठीक है, समझ गए वेव मोशन क्या होता है. अब ये जो वेव मोशन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. आई होप वेव मोशन आपको समझ, ये जो रिपल फॉर्म हुआ ना ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, वो वेव मोशन ही है. यानी डिस्टर्बेंस मूव होता है वन प्लेस टू अनदर, पर वाटर कैरी नहीं होगा, सिर्फ डिस्टर्बेंस पास हो रहा है. यानी वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ऊपर नीचे सिंपली अपने मीन पोजीशन, अपने रेस्ट पोजीशन से मूव हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेव मोशन. ठीक है, अगर एक एग्जांपल लूँ उसका, तो फिर एक लीफ अगर मूव कर रहा है, ठीक है, लीफ फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस में, तो यू सी द लीफ मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड बट डज नॉट मूव अवे और टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना. तो वो एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर होता है. तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने लिस्ट डाउन किया. सी, इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, यानी रेस्ट पोजीशन, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन. सो अ वेव मोशन ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन इन एनी मीडियम. एक पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक तो पार्टिकल जो होता है मीडियम का वो मूव नहीं करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वो वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन. सिमिलरली द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग. वेव मोशन जो है वो ट्रैवल करता है सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस इन एनी मीडियम. और
ड्यूरिंग अ वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर, यानी कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, यानी मीडियम डज नॉट मूव, एक पूरा मीडियम एज अ होल मूव नहीं करता, सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम से ट्रैवल करता है। समझ गए? अब देखते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए उसको हम कहते हैं मैकेनिकल या इलास्टिक वेव्स, यानी वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव, वाटर वेव्स, वेव्स बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, या अर्थक्वेक वेव्स, या शॉक वेव्स भी एग्जाम्पल है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से जो वेव्स प्रोड्यूस होता है उसको हम शॉक वेव्स बोलते हैं। तो वो भी सब एग्जाम्पल्स है मैकेनिकल वेव्स का। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, जो जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए नहीं होता प्रोपोगेट करने के लिए, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है, वो मीडियम कोई भी मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसे मीडियम को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, जो लाइट एक एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, अगर स्पीड की बात करते हैं तो नॉन मैकेनिकल वेव्स की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मैकेनिकल वेव्स से। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या होता है, वेव्स जो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से, यानी दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन बट दे आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हमने कहा लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बोला, सो ये क्या करता है, ये ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम से। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, ये सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। समझ गए? लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। तो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझ गए? मतलब ये एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का, विच डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। उसी तरह का एक एग्जाम्पल है रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो ट्रैवल करता है वैक्यूम में विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ट्रैवल करता है। द स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी अदर मीडियम जो है वो कम होगा इस वैल्यू से, इससे तो कम ही होगा वो। ठीक है, यानी लाइट वेव्स जो ट्रैवल करता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वाटर का जो है पर पानी में स्पीड ऑफ लाइट वेव होगा 2.25 × 10⁸, मतलब इससे तो कम होगा। 3 × 10⁸ वाले से जो है वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। जब वो समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो हम देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होता क्या है इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।